We have to now start the next topic on probability after discussing the probability theory. Now we come to probability distributions. We have to cover three types of probability distributions. One is binomial, second is Poisson, and third is normal. Before going into these three types of probability distributions, we first need to understand what do we actually mean by a probability distribution. So, we all know what a frequency distribution is. Frequency distribution means that how the frequency is distributed. And what do we mean by how the frequency is distributed? It means that how many times a particular value is taken by a random variable. So the term random variable is used very commonly in statistics. What do we mean by random variable? Random variable means any variable that we are studying which can assume different values, right? तो वेरिएबल है मतलब वेरी कर सकता है, अलग अलग वैल्यूज़ ले सकता है. जैसे देर आर मार्क्स, the marks obtained by the students in a class. So the marks is a variable. So if we just randomly choose 10 students out of the class, the marks that they all of them are securing are the different values that this random variable can take, right? And how many times it is occurring in the total number of observations that we have taken. Suppose we study the marks obtained by 50 students in a class. So it is quite possible that 10 of them are obtaining 50 marks, 5 are obtaining 90 marks. तो इस तरह से जब हम वैल्यू लिखेंगे, the value that the random variable has taken is 50, second is 90, एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, उसके जो अकरेंस है वो कितनी बार हुआ है. तो कितनी बार कोई वेरिएबल अकर करता है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट हाउ मैनी टाइम्स ईच वैल्यू इज़ टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल. So that frequency distribution can be drawn or constructed in two ways. So what we have written here, frequency distribution, one is the observed or the actual, and second is theoretical or expected, राइट. तो अभी जिसकी जो हमने एग्जाम्पल लिया, हमने एक्चुअली देखा कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हर एक ने कितने मार्क्स सिक्योर किए, और फिर उसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई. तो हमने एक्चुअली ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, और फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया. सो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ actual frequency distribution, which is based on your observations. Now, instead of actually observing all these outcomes or the different types of occurrences, we can construct a frequency distribution on the basis of our mathematical understanding, right? तो mathematical concepts की जो हमारी understanding है, उसके basis पर भी हम frequency distribution construct कर सकते हैं एक्चुअली ऑब्जर्व किए बगैर. आपने एक्चुअली नहीं पता आपको कि अगर कोई चीज़ इतनी बार होती है तो वो उसमें एक वैल्यू आने के कितने चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं. तो उसे हम कहते हैं इट इज़ द थियोरेटिकल, मतलब थियोरेटिकल है, एक्चुअली ऑब्जर्व्ड नहीं है. या फिर हम कहें कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि जब हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जहाँ पर कि हमने एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं किया है वैल्यूज़ को, तो वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं. वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट a frequency distribution, and it is known as a probability distribution or theoretical distribution or expected distribution, right? So इन तीनों नाम से ही हम इसे जानते हैं. That is what we have written second, theoretical or expected, or we can also call it as probability distribution, right? तो अभी हम जिसकी बात करेंगे in this chapter, that is probability distribution. तो probability, theoretical or probability distributions are either discrete or continuous, right? So discrete distributions or continuous distributions, out of these two, out of these three, the first two are the discrete distributions, and the
third one is a continuous distribution. So what do we mean by discrete frequency distribution or discrete probability distribution? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो रैंडम वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी हम दिखा रहे हैं, इट कैन टेक ओनली लिमिटेड वैल्यूज़. उसको जो अगर हम वेरिएबल x मान रहे हैं तो x कैन टेक ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़, और जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी की अकरेंस को शो कर रहे हैं तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी नोन एज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन, जिसके लिए हमने जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट की है, वो वेरिएबल लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले सकता है. लाइक जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, जब आप एक सिक्का उछालते हैं, तो उसमें दो ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, वन इज़ अ हेड एंड अदर इज़ अ टेल, राइट. सो द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन जिसकी हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट वेरिएबल कैन टेक ओनली limited number of values. And continuous theoretical distribution means that the variable under consideration can take any value. It is a continuous, मतलब वो पॉइंट्स में कहीं तक भी जा सकता है. सपोज यू टेक द वेट ऑफ अ पर्सन, राइट. तो आप वेट, वैसे तो केजीज में फिक्स वैल्यू होती है आपकी कि 1 kg 2 kg 3 kg वेट्स आपने लिए, लेकिन वो 3.223 3.35, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज. सो इट बिकम्स अ कॉन्टिन्यूअस कर्व. तो इसलिए हम उसको, जो ऐसे वेरिएबल की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उन्हें हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. तो इन तीनों थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में से जो फर्स्ट टू हैं वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. मींस जिस वेरिएबल का, जो अंडरलाइंग वेरिएबल है जिसके लिए ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट की जा रही है, वो लिमिटेड वैल्यूज़ ले सकता है. और जो नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो अंडरलाइंग वेरिएबल है, इट कैन टेक एनी वैल्यू. सो इट इज़ अ continuous distribution. So now first we will talk about the discrete distributions, and amongst those two also first we will talk about binomial distribution. So binomial distribution, the concept of binomial distribution is given by James Bernoulli. We have also studied the Bernoulli's theorem when we were talking about the probability theory, that we can make use of Bernoulli's theorem if we want to calculate the exact number of successes in n number of trials, right. So the same thing will be repeated here. James Bernoulli gave this concept of binomial distribution, where there is a definition, there are certain assumptions, and there are certain characteristics. So when we will talk about all these theorems, जितने भी हम इन probability distributions की बात करेंगे, उसमें आपको ये समझना है कि इनकी assumptions क्या हैं, क्या इनके फॉर्मूलाज हैं, और क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो यू कैन बी आस्क्ड अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑल्सो कि आप पूरा उसको एक्सप्लेन करिए, या उसकी एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें हम उसको एक्चुअली अप्लाई करेंगे टू सॉल्व अ particular problem or practical application, right. So let us see what we have written here. This is exactly same what we discussed while using the Bernoulli's theorem in probability theory. तो binomial distribution की definition क्या है, that the probability of x is equal to, here x जो capital X हमने लिखा है, this is equal to small x. दोनों इक्वल है, या तो आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, उसका एक ही मीनिंग है. सो एन सी एक्स, वी आर मेकिंग यूज ऑफ कॉम्बिनेशन p to the power x and q to the power n minus x. What do we mean by this? The probability of x number of successes in n trials. एक एक्सपेरिमेंट है, उसको आप n टाइम्स करते हैं. जैसे एक सिक्का उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, उसको आपने 10 बार किया तो n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा उस केस में, राइट. और हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या चांसेस हैं कि हमें 4 बार हेड मिलेगा, तो हेड हमारी सक्सेस है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग P4 x जो है उसको आपको डिफाइन करना होता है कि आप
किसको जो है सक्सेस मान रहे हैं और कितनी सक्सेस आप चाहते हैं। तो हम हेड आने को सक्सेस मान रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि 4 बार हेड आए, तो x बिकम्स 4 इन दिस एग्जाम्पल। तो जैसे ये यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब जिसको आपने सक्सेस माना है, हमने हेड आने को सक्सेस माना है, तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी है, सो p बिकम्स 1/2। तो q क्या हो जाएगा, दैट इज द फेलियर, मतलब सक्सेस नहीं होगी तो फेलियर होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जितने भी आउटकम्स हैं उनकी 1 है, तो 1 - 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल ऑल्सो बी 1/2। तो अब हमने ये जानना है कि 10 टाइम्स हम उसको कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि 4 बार हेड आए, तो 4 बार हेड आए तो बाकी 6 बार टेल आनी चाहिए। तो वही चीज़ हम इसको फॉर्मूला के थ्रू लिखते हैं। सो वी राइट p, अगर मैं इसको इसी एग्जाम्पल को जो आपको मैंने अभी बोला है हम उसके टर्म्स में लिखें, तो p बिकम्स 4, हम चाहते हैं कि 4 बार सक्सेस आए, इज इक्वल टू 10 टाइम्स हम उसको कॉइन को टॉस कर रहे हैं, c इज कॉम्बिनेशन, कितने सक्सेस हम चाहते हैं, 4। p जो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बार आनी चाहिए, 4 बार आनी चाहिए। इसका मतलब जो q है वो कितनी बार आना चाहिए, वो 10 - 4 यानी कि 6 बार आना चाहिए। और हमने 10c4 p को हाफ बोला है 1/2 टू द पावर 4, तो q भी क्या हो जाएगा 1 - 1/2 विच इज़ 1/2 टू द पावर 6, राइट। सो सिंपल है, ये आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि 10 बार आपने एक चीज़ को किया, आप चाहते हैं कि 4 बार सक्सेस हो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो वो 4 बार होनी चाहिए। सक्सेस नहीं होगा तो बाकी 6 बार फेलियर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 टू द पावर 6, राइट। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन दिस theorem which is given by Bernoulli, and it is the main part of discussion when we talk about the binomial distribution, ठीक है। तो अब ये जो binomial distribution है इसको हम कब अप्लाई करते हैं, इसके कुछ assumptions हैं। assumptions क्या है, नंबर 1 इज देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो ट्रायल्स है मतलब जितनी बार आप उस एक्सपेरिमेंट को करो वो फाइनाइट होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सेकेंड है कि जो आउटकम्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब एक के साथ दूसरा नहीं हो सकता। तो हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। थर्ड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। हर एक ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहनी चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिक्का अगर आपने दूसरी बार उछाला तो ज़्यादा चांसेस है कि हेड आएगा, या तीसरी बार उछाला तो ज़्यादा चांसेस है कि टेल आएगा। चाहे आप उसको कितनी बार भी उछालें, हर बार हेड आने का चांस 1/2 ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। एंड द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, तो जितनी बार भी आप उसको करेंगे उस एक्सपेरिमेंट को, एक ट्रायल का रिजल्ट दूसरे ट्रायल के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, लाइक द टॉसिंग ऑफ द कॉइन ओनली। तो आप चाहे 50वीं बार भी उछालेंगे तो भी पहली बार क्या आया था कॉइन पे वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी ट्रायल का आउटकम जो पिछले आपने 49 टाइम्स उसको टॉस किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 50th टाइम पे क्या आउटकम आता है। तो सारे जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये सारी अजम्पशंस पूरी होती हैं तो ही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको समझने हैं। फर्स्ट इज इट इज़ अ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव अंडरस्टूड कि ये एक्चुअल नहीं है, हमने अपनी प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम इसको बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज की कितनी होंगी। तो फ्रीक्वेंसीज जो हमने एक्स की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 बार सक्सेस होगी, 0 बार सक्सेस होगी, 2 बार सक्सेस, 3, 4, 5, तो कितनी बार हम चाहते हैं कि सक्सेस हो और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम खुद बनाते हैं। हमने एक्चुअली नहीं सिक्के को उछाला 50 बार या 100 बार, लेकिन हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग और मैथमेटिकल रूल या प्रोबेबिलिटी का रूल लगाते हुए हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली है, राइट। सो दिस इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज जो अंडरलाइंग वेरिएबल है वो लिमिटेड वैल्यूज़ ही ले सकता है। जैसे हमारा टॉसिंग ऑफ कॉइन है, टॉसिंग ऑफ डाई है, 6 वैल्यूज़ ही आ सकती हैं, तो उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, तो ये लिमिटेड वैल्यूज़ ही अज्यूम कर सकता है। then there is a line graph, we can draw a line graph for each of the नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो जितने भी हमारी नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वी कैन ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर दैट।
एंड द शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब इसको हम ध्यान से देखेंगे कि हमने तीन चीज़ें ली हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब एक्स को हमने क्या डिफाइन किया है, सक्सेस, मतलब ज़ीरो सक्सेस. जैसे एग्जाम्पल हम अगर वही वाला लें तो हेड अगर 0 बार आता है तो वो 0 सक्सेस हो गई. तो 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है. 1 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक बार हेड आएगा उसके क्या चांस है, 2 बार आएगा उसके क्या चांस है. और टोटल जो है वो 4 हमने लिया है. तो n हेयर इट बिकम्स 4, मतलब आप 4 बार उछाल रहे हो उस सिक्के को. ठीक है, तो n इज 4. और हम ये जानना चाह रहे हैं कि हेड जो है 0 बार आएगा उसके क्या चांस है, 1 बार आएगा उसके क्या चांस है, 2 3 4. मैक्सिमम 4 बार ही आ सकता है क्योंकि आपने 4 बार कॉइन को टॉस किया है. ठीक है, तो शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ p. अगर p आपका 0.5 है तो ये जो शेप आएगी दैट विल बी सिमेट्रिकल, मतलब एक मिडल वैल्यू होगी, उसके आधी वैल्यूज एक तरफ होंगी और आधी दूसरी तरफ. ये सिमेट्रिकल शेप है. अगर हम इसको एक ऐसे कर्व बनाएं तो इस तरह से बनेगा. सो दिस बिकम्स अ सिमेट्री. तो अब आपका जो सेकेंड सिचुएशन है जहाँ पे p लेस देन 0.5 होगा, अगर मतलब आधे से कम है अगर p की प्रोबेबिलिटी, तो ज़्यादा जो आपकी वैल्यूज़ होंगी दे विल बी ऑन द दिस लोअर साइड. जो लोअर वैल्यूज़ है 0 1 2 जो वैल्यूज़ हैं उस तरफ ज़्यादा आपके प्रोबेबिलिटी आएगी. सो दिस इज स्क्यूड टू द राइट. इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड भी बोलते हैं. एंड देन द जो नेक्स्ट है जहाँ पे p जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो मोर देन 0.5 अगर होगी तो हमारी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस तरफ आएगी, दैट विल कम ऑन द लार्जर साइड. जो ये हायर नंबर ऑफ ट्रायल्स है 1 2 3 4, तब आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा आएगी. तो ये स्क्यूड टू द लेफ्ट है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेगेटिवली स्क्यूड, राइट. तो ये जो आपका वैल्यूज़ हैं, दिस कर्व डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ p. ठीक है, तो अब ये शेप हो गया ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. देन मेन पैरामीटर्स क्या हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन के मेन पैरामीटर्स होते हैं n एंड p. n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है ये हम खुद डिफाइन करते हैं. और कॉन्स्टेंट्स क्या है इसके, एक्स बार है वो मीन होता है. मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी. आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है इसकी. मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू. सो ये आपके मेन इसके कॉन्स्टेंट्स हैं. और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं, यूजेस वहाँ पर हैं जहाँ पर कि हमारे we have only limited number of trials and the outcomes are also limited. There we can apply the binomial distribution in different situations while taking the decisions, right. तो statistical decision making theory में ये जो theoretical distributions हैं इनका बहुत ज़्यादा usage है. तो इन characteristics और points को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ questions को practical applications को देखेंगे in the next discussion.